Today we discuss counting of relation. And I told you in my previous lecture that the counting is very important and essential part for your competitive exam. Why it is essential? Because it relates to your conceptual part of mathematics. So let's see how could you count the relations. Whenever we talk about the counting, you always link the countings from your 11th class where we discuss about the number of subsets of a set. तो हम रिकॉल करते हैं क्लास 11th के इस टॉपिक्स को. As we know that if any element A have n number of element, any set A having n number of element, then the number of subsets is always equal to 2 raised to the power n. Always remember, in pure mathematics, in whole mathematics, the cardinality, or you can say the counting, always defined by hash, by this hash. So whenever I use this, it means simply number of. So if you come to the counting of relations, so tell me about relation. As we know that the definition of relation, if R is a relation from set A to set A, and set A, let set A having n element. Okay, set A having n element, it means set A is a finite set terminate at n number of element. So according to the definition, in my first lecture we already discussed that the definition of relation is the total number of possible subset of the Cartesian product from where the relation is defined. Whenever we define a relation from set A to set B, the number of proper Cartesian product A cross B, then the total number of subset of that Cartesian product, possibly the possible number of relation of that particular Cartesian product. So whenever we study about the countings, first link with the number of subsets. So if a set having an element, then what about A cross A? And the A cross A having the element 1 1, 1 2, and so on 1 n, 2 1, 2 2, and so on 2 n, and so on n 1, and 2, and so on n n. Then possible number of elements in that Cartesian product is n cross n. As we know that the definition, the relation must be a subset of A cross A. For that particular, you watch the first lecture where we discuss the definition of relation. So whenever we discuss about the definition of relation, we always find out some order pair of the Cartesian product where you define your relation. तो अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट n क्रॉस n है. इसका मतलब ये हुआ कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर जो हैं वो कितने हैं, n by n. देन यू कैन से नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इन A क्रॉस A is equal to n square. n into n, it means n. So the number of relation, how much number of relation from set A to set A? Then the number of relation, note लगाइए, the number of relation is equal to total possible number of subsets of A cross A. Therefore, the number of relations equal to 2 raised to the power, the total possible number of A cross A is n square. It means simply, अगर आपके पास कोई रिलेशन सेट ए से सेट ए पे है
तो उसके अंदर नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन कितने होंगे, 2n² होंगे। मैक्सिमम 2n² नंबर ऑफ रिलेशन बन सकते हैं, और रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो वो इन्हीं में से कोई रिलेशन होंगे। जैसे कि हम सेट में डिफाइन क्या करते थे कि नंबर ऑफ सबसेट 2n होंगे, इसी तरीके से नंबर ऑफ रिलेशन अगर ए से ए पे हैं तो 2n² होंगे। अब हम जाते हैं इसके टाइप्स की काउंटिंग पे, कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन जानने से पहले रिफ्लेक्सिविटी क्या है। हम काउंटिंग करेंगे नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालने के लिए हमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा। हमने आपको बताया था दोज रिलेशन फ्रॉम ए टू ए इफ दिस आर कंटेन आइडेंटिटी देन आर इज रिफ्लेक्सिव। सीधी सी डेफिनेशन थी हमारी कि अगर आर इसकी आइडेंटिटी को कंटेन करता है तो आर रिफ्लेक्सिव होगा। और रिफ्लेक्सिविटी और आइडेंटिटी में हमने छोटा सा फर्क बताया था। हर आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं होगा। यानी आइडेंटिटी के अलावा भी अगर ऑर्डर पेयर हमें मिलते हैं तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा ही, लेकिन आइडेंटिटी, सिर्फ आइडेंटिटी का कोई भी एलिमेंट मिस हो जाता है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। तो इसमें अगर हम नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करें तो दोबारा हम A क्रॉस A को लिखना चाहें, हेयर द सेट इज अगेन सेट ऑफ n numbers where n is any positive integer then A। अगर हम यहाँ पे पूछें कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होंगे तो आप अगेन कहेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर n/n एलिमेंट है। इसके अंदर ये जो डायगोनल एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो 1 1 2 2 3 3 एंड सो ऑन n को कंटेन करता है, यानी इसका अगर आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करें हम 1 1 2 2 एंड सो ऑन n, इनको जो कंटेन करने वाले रिलेशंस होंगे वही आइडेंटिटी रिलेशन होंगे। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम आइडेंटिटी के अलावा एलिमेंट्स की बात करें तो उन एलिमेंट्स के लिए हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन की काउंटिंग कर सकते हैं। तो जो ऑर्डर पेयर हमें काउंट करने होंगे वो कितने होंगे, तो ऑब्वियस बात है आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर पेयर है, देन द पॉसिबल ऑर्डर पेयर फॉर काउंटिंग ऑफ रिफ्लेक्सिविटी इज इक्वल टू क्या होगा, इस n² में से हमें n एलिमेंट निकालने होंगे। और नंबर ऑफ रिलेशन तो हम पीछे पढ़ के आपको बता ही चुके हैं कि नंबर ऑफ रिलेशन 2 नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर पेयर होते हैं। इसका मतलब हो गया कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होंगे वो आपके कितने होंगे, 2n² माइनस n, और यू कैन से 2n into n minus 1. This is the number of reflexive relation. के number of symmetric relation कितने होंगे? How many symmetric relation exist from A to A? आप A to B भी ले सकते हैं। अगर आप relation from A to B लेंगे तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। If a relation from A to B आपसे कोई पूछ ले, मैंने A to A लिया हुआ है, तो सिंपली आपके पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B में एलिमेंट कितने होंगे, मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A n है और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B m है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B कितने हो जाएंगे, m into n। इस केस में नंबर ऑफ रिलेशन जो होंगे वो आपके कितने हो जाएंगे, 2m into n। और अगर दोनों को सेम कर दें, n कर दें, तो 2n²। तो ये मैं सोचिएगा कि मैंने सेम एलिमेंट लिया है, सेम सेट इसलिए लिया है ताकि आपको काउंटिंग में इजीली दिक्कत नहीं आए कोई, और वो आपको रिलेशंस याद रहे। नाउ कम्स ऑन सिमेट्रिक रिलेशन। नाउ नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, now come on, how many symmetric relation we have? Again we have a relation from A to A, and again set A having an element, okay, then the number of element of A cross A is again 1 1. Total number of element of that Cartesian product is n cross n is again remember my last lecture where I told you about the symmetricity.
क्योंकि सिमेट्रिसिटी की प्रॉपर्टी पे आइडेंटिटी एलिमेंट कोई फर्क नहीं डालते। इसका सीधा सा मतलब ये हो गया। फिर अगेन जो ये डायगोनल एलिमेंट के पेयर होंगे, यानी फिर 1 1 2 2 3 3 एंड सो ऑन एन एलिमेंट जो हैं, ये एलिमेंट कभी भी सिमेट्रिसिटी पे भी कोई इशू क्रिएट नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि अब कौन से एलिमेंट हमें सिमेट्रिसिटी के लिए चाहिए। तो ऑब्वियस बात है, हमें अगर हम डायगोनल को मिरर एज्यूम कर लें, एक तरीके से ये मिरर है जिसमें आपका 1 1 आ रहा है, जिसमें आपका 2 2 आ रहा है और एंड सो ऑन जिसमें आपका n n आ रहा है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है उसकी मिरर इमेज यहाँ मिलनी चाहिए, जो यहाँ पे एलिमेंट है उसकी मिरर इमेज यहाँ मिलनी चाहिए, जो यहाँ पे एलिमेंट है उसकी मिरर इमेज यहाँ मिलनी चाहिए, जो यहाँ पे एलिमेंट है उसकी मिरर इमेज यहाँ मिलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 1 2 है तो 1 2 की मिरर इमेज 2 1, अगर यहाँ पे 1 3 होता है तो 1 3 की मिरर इमेज 3 1 एंड सो ऑन। यानी कि एक बात क्लियर हो गई कि डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट के लिए डायगोनल से नीचे के सारे एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अगर मैं डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट आपसे पूछूं, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट above the diagonal, how many एलिमेंट टोटल n स्क्वायर। आइडेंटिटी को मैंने निकाल दिया तो एलिमेंट कितने बचे, n स्क्वायर में से आइडेंटिटी के n एलिमेंट चले गए। अब आपके पास क्या बचा, जब आइडेंटिटी के n एलिमेंट चले जाते हैं तो n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट में डायगोनल से ऊपर हाफ और डायगोनल से नीचे हाफ, यानी डायगोनल से ऊपर के जो एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे, n स्क्वायर माइनस n/2। हमने यही एलिमेंट क्यों लिए, क्योंकि ये जो एलिमेंट होंगे इन सारों के मिरर इमेज डायगोनल से नीचे एग्जिस्ट कर रहे होंगे। यानी अगर मुझे सिमेट्रिसिटी चाहिए तो अगर मेरे पास 1 2 है तो मेरे पास 2 1 होना ही चाहिए, अगर मैं सिमेट्रिक रिलेशन की बात कर रहा हूं। अगर मेरे पास 1 3 है तो 3 1 होना ही चाहिए। तो एक बार अगर मैंने 1 2 को काउंट कर लिया तो उसके लिए मुझे 2 1 काउंट करने की जरूरत नहीं है। अगर वो सिमेट्रिक है तो वो होगा ही होगा, वरना सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हो सकते। तो इसका मतलब हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट above the diagonal is the number of element for symmetricity. Then the number of element for symmetricity is equal to number of element above the diagonal. Number of element is above the diagonal is n square minus n/2. Therefore, number of symmetric relation is 2 raised to the power n square minus n/2. Okay, when you take n common, this is 2 raised to the power n minus 1/2. अब जेई में इस तरीके का सवाल पूछे जाते हैं। ये सवाल जेई में बहुत पूछा गया है कि नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने होंगे काउंटिंग के लिए। तो अगर आपको ऐसे दे दे ऑप्शन में तो आप ऐसे बता दीजिए, अदरवाइज एक ऑप्शन और बन सकता है। वी नो दैट समेशन n इज इक्वल टू हाउ मच, n प्लस 1/2। देन सिंपली समेशन n माइनस 1 इज इक्वल टू हाउ मच, देन पुट इन प्लेस ऑफ n माइनस 1, देन यू गॉट n minus 1 into n minus 1 plus 1/2. 1 से 1 cancel out, so this is n into n minus 1/2, n into n minus 1/2. Then summation n minus 1 is nothing but n minus 1/2. Then simply you can say the number of symmetric relation is 2 raised to the power n square minus n/2, or 2 raised to the power n minus 1/2, or 2 raised to the power summation of n minus 1. Then all statements are correct. If somebody asking about number of symmetric relation, 2 raised to the power n square minus n/2, 2 raised to the power n minus 1/2, 2 raised to the power summation n minus 1. After watching my lecture, if you have any query regarding that how you count that relation, then please write in comment. I assure you, I always give suggestions, I always give comments, or I will make a video to your based on your queries. Be remember here the hash is for number of. So another part is number of asymmetric relation.
हाउ मैनी एसिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक, मैंने आपको दोनों डिफाइन किए थे इन माई लास्ट लेक्चर. Whenever we discuss about number of asymmetric relation, always remember those relation which are not symmetric. इसका मतलब ये है कि अगर हम पीछे वाले सिमेट्रिक रिलेशन को टोटल नंबर ऑफ रिलेशन से निकाल दें, हमारे पास एसिमेट्रिक रिलेशन बन जाएंगे. देन सिंपली नंबर ऑफ asymmetric relation is total number of relation, total number of relation minus number of symmetric relation. That means अगर एक रिलेशन फिर A से A पे हम ले रहे हैं और अगेन A हमारा सेट वही 1 से लेके n तक एलिमेंट को कंटेन करता है, इसका मतलब हुआ यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल रिलेशन 2n हो जाएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर n स्क्वायर हो जाएंगे, और यहाँ पे नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन हमारे पास 2n(n-1/2 हो जाएंगे, 2n(n-1/2 हो जाएंगे. तो आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए. नंबर ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशन इज 2n² माइनस 2n(n-1/2. सो दिस इज हाउ मच नंबर ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशन. Very clear? So the next one is anti-symmetric relation, and this anti-symmetric relation is very important for your JEE exam. कई बार पूछा गया है JEE में. रीजन ये है कि इसकी काउंटिंग थोड़ी डिफरेंट होती है. इसमें हम एक आइडिया लेंगे कि एंटी सिमेट्रिसिटी कब एग्जिस्ट करती है. If you remember my last lecture, I will told you that the anti-symmetricity is only those symmetric relation which contain only those asymmetric relation which contain identity as well. यानी कि जो सिमेट्रिक तो ना हो लेकिन आइडेंटिटी कंटेन करते हो. तो whenever we discuss about, this is very important for JEE. Okay, number of anti-symmetric, number of anti-symmetric relation, very important one. हम एंटी-सिमेट्रिसिटी में क्या कहते थे कि अगर आपका ए बी बिलोंग करता है आर में, फिर वही बात, अगर आर ए से ए पे एक रिलेशन है वेयर ए इज अ सेट ऑफ काउंटिंग नंबर 1 to n, then simply total number of relation is 2n². Why? Because number of element having n and the Cartesian product having element n square, that by number of total relation is 2n². Again we make a cross a, and how many element we have? N by n, it means n square element we have. In that element the identity is 1 1 2 2 3 3 and so on, n element, यानी कि डायगोनल पेयर एलिमेंट. ओके, अब मैं आपसे सिमेट्रिसिटी डिस्कस कर रहा हूं. तो सिमेट्रिसिटी में हम क्या देखते थे? हम बस कोई भी रिलेशन आर ए से ए पे अगर है ना, तो हम 3 चीजें देखते थे कि ये ए बी और बी ए के अंदर से कौन कौन सी चीज है. ठीक है जी. मैंने कहा मेरे पास ए बी भी है, बी ए भी है, क्या एंटीसिमेट्रिक होगा? क्या एंटीसिमेट्रिक होगा? नहीं होगा. रीजन? चॉइस. हम यहाँ पे चॉइस दिखा रहे हैं आपको. कितनी चॉइस एंटीसिमेट्रिसिटी के लिए होना चाहिए, ये चीज़ बड़ा ज़रूरी है समझना. तो हमारे पास अगर ए बी भी है, बी ए भी है, ए बी भी हमारे अंदर है, टिक, बी ए भी हमारे अंदर है, यस. तो ए बी और बी ए दोनों है, इसका मतलब सिमेट्रिक हो गया. तो एंटीसिमेट्रिसिटी तो बात ही नहीं हो सकती. इसका मतलब ये चॉइस नहीं होना चाहिए. ए बी नहीं है, बी ए है, ये चॉइस होगी? बिल्कुल होगी. अगर ए बी है, बी ए नहीं है, तो एंटीसिमेट्रिक होगा. मैं आपसे कह रहा हूँ कि ए बी भी नहीं है, ए बी है लेकिन बी ए नहीं है, ए बी है, बी ए नहीं है, ओके फाइन, ये भी एंटीसिमेट्रिक होगा. अब मैं आपसे कह रहा हूँ ना ए बी है ना बी ए है, इसको भी हम एंटीसिमेट्रिक में ही गिनेंगे. यानी एंटीसिमेट्रिक के लिए हमारे पास 3 चॉइसेस होती हैं. तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि whenever we talk about number of antisymmetric element, we have 3 choices for how many pair of element. Again we goes to those element for which you are checking द एंटीसिमेट्रिसिटी. तो क्या हम आइडेंटिटी के लिए एंटीसिमेट्रिसिटी चेक करते हैं? नहीं करते. देन अगेन नंबर ऑफ एलिमेंट फॉर एंटीसिमेट्रिसिटी
इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू। रीजन, टोटल एलिमेंट हमारे पास एन स्क्वायर है, इन एन स्क्वायर में से, इस एन स्क्वायर में से हमने डायगोनल एलिमेंट एन निकाल दिए, तो एबव द डायगोनल कितने बचे, एन स्क्वायर माइनस एन के आधे, यानी एन स्क्वायर माइनस एन बाई हाफ ऊपर, एन स्क्वायर माइनस एन बाई हाफ नीचे, जिनके लिए हम सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट फॉर एंटी सिमेट्रिसिटी इज अगेन एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू, और यू कैन से एन एन माइनस वन बाई टू, और यू कैन से समेशन एन माइनस वन। तो कुछ भी कह सकते हैं आप इसको, एन एन माइनस वन बाई टू भी कह सकते हैं, आप इसको समेशन एन माइनस वन भी कह सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमारे पास चॉइसेस कितनी है, तो वी हैव 3 चॉइसेस फॉर दैट। दैट्स वाई नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन में जो सिमेट्रिसिटी वाले एलिमेंट चेक करने वाले होंगे वो कितने होंगे। देयरफॉर ऑर्डर पेयर एक्सेप्ट आइडेंटिटी इज इक्वल टू n square minus n by 2, and for these element we have 3 choices each. Therefore this number of relation, for that number of anti-symmetric relation, for that 3 raised to the power n minus 1 by 2। ये तो वो एंटीसिमेट्रिक एलिमेंट हो गए जिनके लिए हमें सिमेट्रिसिटी चेक करना थी, लेकिन हमने इसके लिए तो डेफिनेशन सीधी सीधी पढ़ी हुई थी कि ए बी बिलोंग करता है आर में, इट इम्प्लाइज बी ए भी आर में बिलोंग करे इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी, यानी कि जब आइडेंटिटी कंटेन कर रहा हो, यानी कि आइडेंटिटी भी एंटीसिमेट्रिक होगी। देयरफॉर ऑल्सो आइडेंटिटी पेयर which is equal to how much, एन आइडेंटिटी पेयर, डायगोनल एलिमेंट हमारे पास एन है, तो इनके लिए चॉइसेस कितनी हो जाएंगी, अब इनके लिए 3 चॉइसेस नहीं होंगी। फिर आप कहें कि सर इनके लिए 3 चॉइसेस है, आइडेंटिटी के लिए तो हमारे पास नंबर ऑफ रिलेशन वाली ही चॉइसेस है, दैट इज इक्वल टू 2 raised to the power n। देयरफॉर नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन is equal to 2 की पावर n into 3 raised to the power n minus 1 by 2। Very important one। or you can say 2 की पावर n into 3 की पावर summation n minus 1। These are the 2 way to write the antisymmetric relation। Hope you enjoy the counting of relations। Thank you so much।